Good morning, students. So today we'll discuss or learn about formation of company part 3. Clear? In previous I hope you have gone through the previous two parts which I have made of the formation of company. Clear? Now this is the third part, and now what we have to study about in third part. Under this part we'll discuss about the important documents which are sent along with the registration application to the registrar. Now we know, हमें पता है कि we have to send an application of registration to the registrar for making our company incorporated. Without sending the application we cannot make our company incorporated or we cannot register our company. Clear? So along with the application we have to send some important documents which are very compulsory. Without sending these documents to the registrar we cannot commence our business. Clear? We will not get the incorporation certificate from the registrar. Clear? So what are those important documents? Basically those important documents are MOA, which is Memorandum of Association, AOA, which is Articles of Association. Clear? Second is AOA, which is Articles of Association, and third one is Prospectus. Now firstly we go through the MOA. Now what is a MOA? Definition is written here. Now it refers to the document of a company in which those conditions are stated which are important to incorporate a particular business. Now MOA is basically a document under which those conditions are stated. वो conditions state की जाती हैं which are very compulsory or very necessary for incorporating a particular business. Basically MOA contains the objectives of the company. Clear? What are the objectives of a company? Why a company is formed by the promoters? क्यों promoters company बनाना चाहते हैं? क्या objectives है company का? All these things are written on the MOA. Clear? It is known as the foundation stone. It is a kind of a foundation stone of a company. क्लियर? फाउंडेशन स्टोन होता है ना, किसी भी जगह को हम बनाते हैं तो एक फाउंडेशन स्टोन होता है जिसकी बुनियाद पे ही सारी चीज़ें खड़ी होती हैं. तो MOA क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ फाउंडेशन स्टोन ऑफ ए कंपनी. Clear? Without preparing a MOA or sending it to the registrar, one cannot incorporate its business. Clear? Now basically students, what comes under MOA? There are made 6 clauses under MOA. The promoters of the company have to make 6 clauses or mention properly 6 clauses under the MOA. Now what are these clauses? Clear? First clause contain name clause. Now इसके नाम से ही पता चल रहा है, name is suggesting what comes under here. Name clause contains the particular name of the company. We know ना, promoter decide करते हैं कि what should be the name of the company. ठीक है, वो हमारी preliminary activities में आता था कि what should they decide the name of the company. Now what is the final name of the company is written under the name clause. Clear? It is very important to give a particular name to the company. Clear? So first clause of MOA contains name clause. ठीक है. Now इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं. नेम क्लोज में वी कैन नॉट गिव एनी नेम टू द कंपनी. क्लियर? कोई भी नेम अपनी कंपनी को नहीं दे सकते. क्लियर? हमें ऐसा नेम कंपनी को देना होता है जो डुप्लीकेट ना हो, मतलब वो पहले से ही किसी को, लाइक ब्रिटानिया, क्लियर, लक्स, ये नेम्स ऑलरेडी हैं तो वी कैन नॉट गिव आवर कंपनी सेम नेम्स. क्लियर? तो नेम क्लोज कंटेन द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए कंपनी विच शुड नॉट बी कॉपी ऑफ द अदर. किसी दूसरी कंपनी का कॉपी नहीं होना चाहिए. नाउ वन थिंग मोर, अंडर द नेम क्लोज इफ ए कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी. क्लियर? अगर वो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी यू नो द कंपनी हुज ओनर्स आर द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ठीक है, विच इज ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. तो इफ ए कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी तो उसको अपने पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखना बहुत ज़रूरी है, लाइक ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. It is very important for a private company to write down a private limited after its name. Clear? Similarly, if a company is a public company means a company which is owned by the government. तो वो क्या लिखते हैं पीछे? Only limited. ABC limited company. Clear? ABC limited company under the public company, ABC private limited company under the private company. Clear? So this is better your name clause. ठीक है, under the MOA. Now our second clause is situation clause. Now what is a situation clause? Basically under our preliminary activities there are 2 decisions which promoter takes. First, what should be the name of the company, and second, what should be its place, where should be its registered office. Clear? So under the situation clause what is written, under this clause it is written in which state
इन विच स्टेट द पर्टिकुलर कंपनी इज सिचुएटेड, मतलब कि किस स्टेट में कंपनी का हेडक्वार्टर है, किस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है। तो अंडर दिस सिचुएशन क्लोज व्हाट इज रिटन, ओनली द सिचुएशन, अंडर द सिचुएशन क्लोज इट इज रिटन दैट इन विच पर्टिकुलर स्टेट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज, क्लियर। नाउ आवर थर्ड क्लोज इज बेटा ऑब्जेक्ट क्लोज, क्लियर। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लोज, अंडर दिस क्लोज basically there are two terms under this clause is bifurcated into two terms, main objects and other objects. Now ऑब्जेक्ट क्लोज बेसिकली कंटेन्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, किस ऑब्जेक्ट को लेके, किस ऑब्जेक्टिव को लेके कंपनी शुरू हो रही है। अब उसके अंदर दो चीजें आती हैं, कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है और अदर ऑब्जेक्ट्स क्या है। नाउ इन दोनों को बाइफरकेट करना जरूरी है, क्लियर, ताकि कंपनी में जितने भी मेंबर्स हैं जो कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं उनको पता हो कि कंपनी का एक्चुअल मेन ऑब्जेक्ट क्या है और उसके बाकी ऑब्जेक्ट्स क्या है। बेसिकली जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं, टू अचीव दीज मेन ऑब्जेक्ट्स, clear. There are some main objects of the company. To achieve that objects, a company made other objects, clear. So under this objective clause what is written, the objectives of the company. Now coming to the fourth clause, now fourth clause is the liability clause. Now what is written under the liability clause, we know company has a limited liability, क्लियर। हमें पता है कंपनी का वन ऑफ द एडवांटेज क्या है कि इसकी जो लाइबिलिटीज है वहां पे क्या होती हैं, कंपनी की लिमिटेड होती हैं, क्लियर। उसके इंडिविजुअल्स की, शेयर होल्डर्स की, जितने भी पर्सन रिलेटेड टू द कंपनी है, जो पार्ट है कंपनी की, उनकी लाइबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड होती हैं। तो बेटा अंडर द लाइबिलिटी क्लोज यही लिखा जाता है कि जो ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है, एंड अदर पार्टीज विच आर इन्वॉल्व टू द कंपनी, देयर लाइबिलिटीज आर लिमिटेड। लिमिटेड कहाँ तक है, अप टू द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड और अप टू द अमाउंट दे हैव परचेज देयर शेयर्स। लाइक एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एग्जाम्पल। A is the shareholder of a company. A ने शेयर परचेज किए, उसके पास कंपनी के 100 शेयर हैं, क्लियर, एट ₹10, मतलब 10 रुपए के उसके पास 100 शेयर है। टोटल उसने कितना इन्वेस्ट कर दिया, 1000, क्लियर। टोटल ही हैज इन्वेस्टेड 1000 इन द कंपनी। नाउ हिज लायबिलिटी इज अप टू 1000 रुपीज ओनली। अगर इन फ्यूचर कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी लॉस होता है और उसकी लायबिलिटी सिर्फ 1000 तक है, ही विल पे अप टू 1000 ओनली, क्लियर। नो वन कैन डिमांड अबव 1000 रुपीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ए शेयर होल्डर, clear. So under the liability clause what is written, basically it is stated that the liabilities of a company's shareholders is limited up to the shares or up to the amount they invested, clear. Now fifth clause is share capital clause. Now what comes under the share capital clause? Share capital, beta, you all know what is share capital. It is basically capital which a company receive from the by issuing the shares. Share को issue करके जो उनके पास पैसा आता है, that पैसा is known as share capital, clear. So now what is written on the share capital clause? Now आप लोगों ने ये अपनी अकाउंट्स की क्लास में पढ़ा होगा about the different types of share capital, different types of share capital, जिसमें एक आती है authorized share capital और registered share capital. Authorized share capital और registered share capital. Now what is this authorized or registered share capital? Basically एक कंपनी शेयर्स इशू करती है अपने लाइफ टाइम पीरियड में, जब भी उसको पैसों की जरूरत होती है, जब भी द कंपनी वांट्स फंड्स, क्लियर, तो वो क्या करती हैं, शेयर्स को इशू करती हैं, एज इट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्लियर. नाउ व्हाट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? बेसिकली बेटा व्हाट हैपन्स, कंपनी जब भी शेयर का इश्यूज करती है, क्लियर, लेकिन उसको कंपनी अंडर द एमओए ये डिस्क्राइब किया जाता है कि पूरे लाइफ स्पैन में कंपनी सिर्फ अप टू दिस अमाउंट तक ही क्या कर सकती है, शेयर्स को इशू कर सकती है. लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, लाइक इफ ए कंपनी हैज ए ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख, से जस्ट से इट्स ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख, सिर्फ 10 लाख के अमाउंट तक की वो क्या कर सकती है, शेयर कैपिटल क्या कर सकती है, इशू कर सकती है. तो कंपनी अपने लाइफ टाइम में जितना भी उसने लाइफ टाइम में शेयर्स इशू करेगी ना, इस 10 लाख से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती. क्लियर, ये 10 लाख उसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है. क्लियर, विदाउट इस एमओए में बेटा जो जितना इन्होंने ऑथराइज्ड कैपिटल शोन कर चुके हैं ना, ये वट एवर द अमाउंट दे हैव शोन इन द
MOA अंडर द शेयर कैपिटल क्लोज सिर्फ उतनी अमाउंट तक के ही शेयर्स वो क्या कर सकते हैं, पूरे लाइफ स्पैन में क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। क्लियर। अब वो डिपेंड करता है कंपनी पे वो कैसे करता है। लाइक एक ईयर में उसने अप टू 1 लाख क्या किया, एक ईयर में उसने अप टू 5 लाख का किया, बट इट कैन नॉट एक्सीड अबव द 10 लाख। क्लियर। सो दिस कम्स अंडर द शेयर कैपिटल क्लोज। MOA में शेयर कैपिटल क्लोज है, उसके अंदर क्या कहा गया है कि अ कंपनी कैन इशू देयर शेयर्स इन देयर लाइफ स्पैन ओनली, जो ऑथराइज शेयर कैपिटल उसको गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही। Clear. Now last clause of MOA is subscription clause. Now what comes under the subscription clause? Subscription clause में क्या आता है, just simple under the subscription clause जितने भी promoters हैं which are trying to commence a business, which are trying to make a particular company startup, ठीक है, उसको कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, इस सब्सक्रिप्शन क्लोज में सिर्फ एक साइनिंग होती है, साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होती है। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल द प्रोमोटर्स क्या करते हैं, साइन करते हैं एक डॉक्यूमेंट पे। नाउ व्हाट दैट डॉक्यूमेंट कंटेन्स, उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा जाता है सेम लाइक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। आई हैव टोल्ड यू इन द पार्ट सेकंड ना कि स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में ये दिया जाता है कि अबव द जो ऊपर इन्फॉर्मेशन है, द अबव डिक्लेयर्ड इन्फॉर्मेशन इज लीगली राइट। क्लियर। तो वो ट्रू है, राइट है। तो सेम है अंडर द सब्सक्रिप्शन क्लोज साइनिंग होती है। साइनिंग कौन करते हैं, सिग्नेचर किसके लिए जाते हैं, ऑल द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जितने भी कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो साइन करते हैं इस चीज पे कि ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज रिटन अंडर द MOA इज ट्रू। क्लियर। एंड कंपनी विल प्रोसीड along with their lifespan time according to this MOA। ठीक है, इस MOA में अल्ट्रेशन नहीं हो सकती, इसको हम रेटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, अमेंडमेंट नहीं कर सकते। नो अमेंडमेंट कैन बी डन अंडर दी MOA। ठीक है, ये बहुत रिजिड है, फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है, क्योंकि हम जब रजिस्ट्रार को ये देते हैं तो हम ये कहते हैं कि वी विल परफॉर्म आवर एक्टिविटी इंटायरली इन एंटायर लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस MOA। हमें हमारा नेम यही रहेगी, हमारी सिचुएशन, ऑब्जेक्ट क्लोज, ये सब क्या है बेटा, MOA है, और इसके अकॉर्डिंग ही हमारी कंपनी ने क्या करना है, इन फ्यूचर रन करना है। तो अंडर द सब्सक्रिप्शन क्लोज व्हाट इज हैपन, ओनली जस्ट साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, बाय द प्रमोटर्स अंडर विच दे से ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू, ठीक है, लीगल, एंड will perform proceed our proceedings according to this MOA. So that's it for today's topic beta. Today we have discussed about the MOA, which is the first important document which is known as the foundation stone of a company. Clear? तो आज हमने किया है about the MOA, under which we have learned about the definition of MOA. What are the 6 clauses of MOA? That is name clause, situation clause, object clause, liabilities clause, share capital clause and subscription clause. In our next class, we'll talk about the AOA and prospectus. Clear? So, thank you for today.